Good morning, all of you. We are starting with GST topic. Under GST, we have completed place of supply, and under place of supply, we have objective type questions. In chapter 1, we have objective type questions. First question is, if the head office is located outside India, foreign में located a head office, provides interior designing services to branch office in India. Will it be taxable service under GST? Yes, because it is providing services in India. इंडिया में हम लोग सर्विसेज ले रहे हैं. आउटसाइड इंडिया से इंडिया में सर्विसेज आ रही हैं. ठीक है, फॉरेन से हमें सर्विसेज हम लोग ले रहे हैं तो वो इंपोर्ट का पार्ट है. इट विल बी टैक्सेबल सर्विस अंडर जीएसटी. यस. ओके, सो आंसर इज यस. सप्लाई ऑफ सर्विसेज मुंबई में हो रही है ना, इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस टू इट्स ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, यानी हम लोग ले रहे हैं. ठीक है, तो ये जीएसटी के अंदर आएगा. सो आंसर इज यस. सेकेंड, where the goods being sent or taken on approval for sale or return are removed before the supply take place. The invoice shall be issued before or at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier. Before or at the time of supply or 3 months from the date of removal, whichever is earlier. Third option is, wait, before or at the time of supply or 45 days from the date of removal, whichever is earlier. Before at the time of supply or 90 days from the date of removal, whichever is earlier. तो आंसर है इसका फर्स्ट. First answer is right. When the goods being sent or taken on approval for or return sale or return are removed before the supply takes place, before or at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier. इसका आंसर फर्स्ट है. The following services shall be treated as interstate supply where location of the supplier and place of supply are in dash. Interstate supply क्या होता है? Interstate supply यानी within two different states, right? Intrastate मतलब within the state. Interstate मतलब two different states या two union territories या a state and a union territory. All of these आएगा. C के A. All of these भी आ सकता है. What will be your answer? The following services shall be treated as interstate supply where the location of supplier and place of supply are in dash. Interstate का मतलब two different state, two union territories, a state and a union territory. All of these. इंटरस्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी, या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में जा रहा है. तो तीनों राइट है. इंटरस्टेट का डेफिनेशन ऑल ऑफ दीज आता है इसके अंदर. फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट. नंबर 2, फ्रॉम वन यूनियन टेरिटरी टू अदर यूनियन टेरिटरी. नंबर 3, अ स्टेट एंड अ यूनियन टेरिटरी. गुड्स स्टेट से यूनियन टेरिटरी में जा रहा है, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में जा रहा है, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है. उसका मीनिंग क्या होता है? इंटरस्टेट. लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू डिफरेंट स्टेट्स.
Seller is in one state, buyer is in second state. Seller is in one union territory, buyer is in second union territory. Seller is in state and buyer is in union territory, or buyer is in state and seller is in union territory. Okay, so location of supplier means seller and place of supply means buyer. Next, fourth question देखिए, D. Place of supply of fixed telecommunication services shall be dash. आप लैंडलाइन लेते हो ना, लैंडलाइन का फोन, फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, तो वहां पे आपका एड्रेस लिखा जाता है जहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, केबल लगाया जाता है, सर्किट्स लगाए जाते हैं, टेलीफोन लाइन को वहां तक लेके आया जाता है. ठीक है, तो व्हाट इज द राइट आंसर? बी, द लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन वेयर telecommunication line, leased circuit, internet based circuit, cable and dish antenna are installed. अगर फिक्स टेलीकम्युनिकेशन हम लोग लैंडलाइन लगवाते हैं तो हमारी लोकेशन जो हम लोग एड्रेस लिखाते हैं वहां पे आके इंस्टॉल करके जाते हैं ना, केबल लगा के और पूरा वायरिंग करके हम लोगों को टेलीफोन लाइन स्टार्ट करके देते हैं. तो जहां पे इंस्टॉलेशन हो रही है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. ओके, लोकेशन वेयर टेलीकम्युनिकेशन लाइन, लीज्ड सर्किट्स, इंटरनेट लीजेस सर्किट्स, केबल और डिश एंटीना और आर इंस्टॉल्ड. नेक्स्ट, E. Following will be treated as establishment of distinct person. An establishment in India and any other establishment outside India. Second, an establishment in a state or union territory and any other establishment outside state or union territory. An establishment in a state or union territory. Third, and any other establishment being a business vertical registered within that state and union territory. All of the above. इसका आंसर है all of the above. F. Union Territory Goods and Service. Union Territory Goods and Service Tax Act 2017 would not be applicable at dash. Dadra and Nagar Haveli, Chandigarh, Delhi, Lakshadweep. Delhi. UT GST Act would not be applicable at Delhi. Because they have a proper legislature, तो वहां पे ये स्टेट माना जाएगा. SGST इज एप्लीकेबल, UT GST एप्लीकेबल नहीं है. दिल्ली को स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्ट करना है, UT GST कलेक्ट नहीं करना है. Okay, because Delhi is a state, Delhi is a union territory with a legislature, so they can apply SGST. Okay, state GST. UT GST अप्लाई नहीं होगा इसके ऊपर, दिल्ली के ऊपर. बाकी सबके ऊपर UT GST अप्लाई होगा. दादरा नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ये जो तीनों यूनियन टेरिटरीज हैं ये विदाउट लेजिस्लेचर है.
ओके, विदाउट लेजिस्लेचर को यूटी जीएसटी अप्लाई होगा। इन तीनों पे यूटी जीएसटी अप्लाई होगा। दादरा एंड नगर हवेली यूनियन टेरिटरी जीएसटी, चंडीगढ़ है तो यूनियन टेरिटरी जीएसटी, लक्षद्वीप है तो यूनियन टेरिटरी जीएसटी, लेकिन दिल्ली को एसजीएसटी अप्लाई करना है क्योंकि इनको यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर हुआ है। ठीक है, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये यूनियन टेरिटरीज हैं जिसके ऊपर यूटी जीएसटी एप्लीकेबल होता है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी एप्लीकेबल। आपको ये याद रखना है। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये सब है ना यूटी जीएसटी के अंदर आते हैं। Okay, so there are three types of GST, and we can write four types of GST now: IGST, SGST, CGST, UTGST, Union Territory GST. Next पढ़ेंगे where any goods sent on approval basis not earlier than 6 months before the appointed day are rejected or not approved by the buyer and returned to the seller on or after the appointed day. No tax shall be payable thereon of such goods are returned within 6 months from the appointed day. अप्रूवल बेसिस मतलब मैं अभी गुड्स ले रही हूँ और बोल रही हूँ कि मुझे मैं 1 महीना यूज करके देखूंगी, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं इसका पेमेंट करूंगी ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, हम लोग पैसे बाद में देते हैं ना इसके, अप्रूवल बाद में देते हैं, यूज करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आजकल अप्रूवल बेसिस पे कस्टमर्स लेके जाते हैं गुड्स, और अगर 1 महीने के अंदर ये जवाब नहीं आता है उनसे तो फिर ये उनको लेना ही पड़ता है। सपोज 1 मंथ का टाइम दिया है या 6 मंथ्स का टाइम दिया है, तो 6 मंथ्स के बाद अगर बताएगा तो उसको गुड्स लेना ही पड़ेगा। और अगर 6 मंथ्स के पहले बताता है बायर कि मुझे गुड्स नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू रिटर्न बैक दीज गुड्स टू द सेलर, ही कैन रिटर्न बैक। व्हाट इज द राइट आंसर? उसको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा अगर वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर गुड्स वापस करता है तो। ओके, if buyer is returning goods within 6 months, he is not supposed to pay GST on that amount. No tax shall be payable if he is returning the goods within 6 months. So answer is 6 months. जी का थर्ड आंसर है 6 मंथ्स। वापस एक बार पढ़ो, वेयर एनी गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस not earlier than 6 months before the appointed day are rejected or not approved by the buyer. Buyer return कर रहा है, उसको पसंद नहीं आया goods, ठीक है, and returned to the seller on or after the appointed day. No tax shall be payable thereon of such goods are returned within 6 months from the appointed day. अगर 6 मंथ्स के अंदर हम लोग ये वापस दे देते हैं गुड्स को तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगती है। No tax will be payable. Is it clear? गुड्स रिटर्न्ड विद इन 6 मंथ्स, जो हमने गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजा था वो 6 महीने में वापस आ गया, इसके वजह से उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगी क्योंकि ये अप्रूवल बेसिस वाला गुड्स सेंड किया हमने। इज इट क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज रिप्लाई। फिलिंग द गैप्स, filling the gaps with proper phrases.
supplier of goods and place of supply is in same state, then dash and dash is payable. Supplier of goods and place of supply is in same state, क्या लगाएंगे बताओ जल्दी. सेम स्टेट है, इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट. इंट्रा स्टेट में क्या दो टैक्सेस लगेंगी? अभी 11 स्टूडेंट्स खाली आ रहे हैं क्लास के, जल्दी बताओ आंसर. इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है स्टेट में, एक ही स्टेट में सेलर है, एक ही स्टेट में बायर है. प्लेस ऑफ सप्लाई मीन्स बायर, सेलर ऑफ गुड्स मीन्स सप्लायर. TYBMS, केतल, पटेल, वृष्टि. वेरी गुड. Then CGST and SGST is payable. Okay. CGST and SGST is payable. यही क्वेश्चंस में से मैं बनाऊंगी ना इंटरनल एग्जाम. आप ध्यान से अभी पढ़ लो, आप बाद में क्यों पढ़ोगे, अभी आप रीड कर लो. सेकंड, supplier of goods and place of supply are located in different state. different state में located है. seller is in different state, buyer is in different state. Then what is payable? Ketal, very good. What about others? वैभवी, पटेल, ईशा. अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो इंटर स्टेट हो गया. इंटर स्टेट में हम लोग क्या लगाएंगे? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. IGST का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. वेरी गुड. दर्शन. नंबर 3, where supply involve movement of goods, then place of supply is place where movement of goods is dash. वापस से एक बार रीड करते हैं. where supply involves movement of goods, then the place of supply is place where the movement of goods is terminated या delivered. जहाँ पे गुड्स डिलीवर करते हैं हम लोग, उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाता है. क्या लिखूं मैं? टर्मिनेटेड. when the movement of goods is terminated. Okay. when the goods are supplied हम लोग लिखते हैं ना when the movement of goods is terminated. जहाँ पे हमारा गुड्स टर्मिनेट हो रहा है, डिलीवरी दे रहे हैं, वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई. प्लेस ऑफ सप्लाई इज प्लेस वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज टर्मिनेटेड. नेक्स्ट, फोर्थ, where supply does not involve movement of goods, place of supply is dash of goods at the time of delivery. गुड्स का प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ओनरशिप चेंज हो रही है. सपोज मेरे वेयर हाउस पे गुड्स मेरे नाम से थे पहले, मैंने अभी उसको टाइटल ओनर किसी और को बना दिया. उसने मुझे पैसे दिए, जगह वहीं पे, गुड्स वहीं पे पड़े हैं, गुड्स मेरे पास ही पड़े हैं, लेकिन अभी उसने पैसे दे दिए तो ये ओनरशिप उसकी हो गई, सामने वाले की हो गई. सो गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई इज डैश ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. Place of supply is location of goods at the time of delivery. Okay. Location of goods. Any doubts? Hello. Hello. हाँ छड्डू. नमे ये गुड्स है, ठीक है. व्हेन द गुड्स, गोल्स लिखा है. व्हेन द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड, प्लेस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ डैश. जहाँ पे गुड्स इंस्टॉल होते हैं उसी प्लेस को लिया जाता है. इंस्टॉलेशन.
When the goods are installed, the place of supply will be the place of installation. जहाँ पे मशीन इंस्टॉल हो रही है उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. ठीक है. कस्टमर की लोकेशन वही होगी जहाँ पे उसके गुड्स इंस्टॉल होंगे, मशीन इंस्टॉल होगी. विल बी द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन. नंबर 5, वेयर गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड ऑन कन्वेयंस. आप घूमने जा रहे हो, ट्रेन में आपने कुछ खरीदा, ठीक है. गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड ऑन कन्वेयंस, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी गुड्स टेकन ऑन डैश. जहां से सामान चढ़ाया है उसी जगह से आपका, उसी स्टेट को वो जीएसटी कलेक्ट करना है. दैट स्टेट विल रिसीव द जीएसटी फ्रॉम द कस्टमर. ठीक है. सपोज आप यहाँ से मुंबई से दिल्ली जा रहे हो. यू आर टेकिंग ट्रेन फ्रॉम मुंबई. Okay, you are boarding the train in Mumbai and you are taking lunch in the train. You are purchasing lunch in the train. So वहां पे मुंबई से अगर चालू हुई है ट्रेन, मुंबई से चालू हुई है तो वहां पे गुड्स लोड किया था. फूड आइटम्स वर लोडेड इन मुंबई and when you boarded the train you ordered a lunch and you took the lunch at Mumbai or in between journey. तो गुड्स कहाँ पे, फूड आइटम्स कहाँ से लोड हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पे बोर्डिंग is important. Where goods are supplied on board on conveyance, place of supply shall be goods taken on board. ठीक है. जहां से फूड आइटम्स लोड किए गए हैं उसको बोलते हैं बोर्ड. फूड आइटम्स को हम लोग लोड करते हैं ना, कि ये सामान हम लोग को जो जर्नी में ट्रैवल कर रहे हैं वो लोग परचेज कर सकते हैं. नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू immovable property, the place of supply is dash of such property. Immovable property, the place of supply is dash of such property. Immovable property है जैसे कि कोई बिल्डिंग है, ठीक है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, उसका लोकेशन. वो बिल्डिंग कहाँ पे है, सपोज बिल्डिंग का हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो बिल्डिंग विल बी प्लेस ऑफ द सप्लाई. बिल्डिंग विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, उसकी लोकेशन, बिल्डिंग की लोकेशन. कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन क्या है, एक सर्विस है, सर्विस दे रहे हैं हम लोग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या रिपेयरिंग. द प्लेस ऑफ सप्लाई इज location of such building. Supply of service of fitness center, place of supply is where services are actually dash. फिटनेस सेंटर में जाना पड़ता है और वहां पे जाके सर्विसेज लेनी पड़ती है. जो ट्रेनर होता है वैसे वैसे हमें करना पड़ता है. ठीक है. सो एक्चुअली सर्विसेज आर परफॉर्म्ड. ओके. प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली डैश परफॉर्म्ड. हम लोग फिटनेस सेंटर्स में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तभी हमारा वेट लूज होता है. ठीक है. फिटनेस सेंटर में हमें कुछ परफॉर्म करना पड़ता है. ठीक है. ट्रेनर आपको क्या बोलता है, बोलते जाता है, वो आपको करना पड़ता है. ठीक है. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया शैल बी द लोकेशन ऑफ डैश. गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया shall be the location of importer. Shall be the location of importer. Place of supply of goods exported from India, place of supply is dash. अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो जो कस्टमर है वो आउटसाइड इंडिया है. इस केस में गुड्स में एक्सपोर्ट जब हम लोग करते हैं तो हमारे आईजीएसटी अप्लाई होता है, लेकिन आईजीएसटी एग्जेम्प्ट करके मिलता है. ओके. आईजीएसटी एग्जेम्प्ट in case of export of goods and place of supply is outside India. यहाँ पे डैश में क्या लिखोगे, outside India. Supply of services in relation to training in respect of registered person, place of supply is dash of dash person, dash of such person. कोई registered person ट्रेनिंग ले रहा है. ठीक है. सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेनिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई इज डैश ऑफ सच पर्सन.
जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, ओके, उसकी लोकेशन क्या है, उस पर्सन की लोकेशन। ट्रेनिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाईज डैश ऑफ सच पर्सन, location of such person. The place of supply to a entertainment event shall be place where event is dash held. Event is actually held. सपोज आप मुंबई में रहते हो और आप सिंगिंग का काम कर रहे हो, तो आपको दिल्ली में एक इवेंट होने वाला है, वहां पे आपको बुला रहे हैं, दिल्ली में आपको इवेंट करना है, सिंगिंग करना है, यू आर अ सिंगर। सो कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, इवेंट कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। सो एयर इवेंट इज हेल्ड इन दिल्ली, सो जीएसटी विल बी रिसीव्ड बाय दिल्ली, ओके। प्लेस ऑफ सप्लाई इज एंटरटेनमेंट इवेंट, एंटरटेनमेंट इवेंट इज टेकिंग प्लेस एट दिल्ली, सिंगर मुंबई से दिल्ली जा रहा है, दिल्ली में जाके परफॉर्म कर रहा है, तो उसको दिल्ली में जीएसटी, वो तो जीएसटी पे करेगा, ठीक है, जीएसटी चार्ज करेगा कंपनी को, लेकिन कलेक्ट कौन करेगा, दिल्ली विल कलेक्ट द जीएसटी। Next is place of supply of services by way of transportation of goods to a registered person shall be the dash of such person. Shall be the dash means location of such person. जहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन पे टर्मिनेट हो रहा है, गुड्स लोड कहाँ पे होगा, कस्टमर ने जहाँ जो एड्रेस लिखा है वहां पे ट्रांसपोर्टेशन से जाएगा। हम लोग कोरियर से कुछ मंगाते हैं तो हमारे घर पे आता है ना, हमारी प्रॉपर लोकेशन पे आता है ना। सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में, कोरियर में हमारे लोकेशन पे हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो रहा है, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ऑफ एन अनरजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द प्लेस वेयर पैसेंजर डैश ऑन कन्वेयंस embarks। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसकी एड्रेस हमें पता नहीं है, तो जहां से वो चढ़ रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, ओके। इसको क्या बोलते हैं, एम्बार्क्स, EMBARKS। जहां से वो शुरू कर रहा है अपनी जर्नी, वो जर्नी से स्टार्ट कर रहा है, उस जर्नी को एम्बार्क्स ऑन कन्वेयंस बोलेंगे। जहां से उसने जर्नी शुरू किया है वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर उसकी एड्रेस पता नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, उसने कुछ भी एड्रेस नहीं लिखाया है, जब उसने टिकट लिया बस का, तो बस का टिकट लिया, सिर्फ टिकट लिया और जहाँ पे उतरना है वो उतर जाएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां से उसने जर्नी शुरू की है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, वहां का जीएसटी उसको भरना है, उस स्टेट को वो जीएसटी रिसीव होगा। द प्लेस ऑफ सप्लाई, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन बोर्ड और कन्वेयंस शैल बी द लोकेशन ऑफ फर्स्ट डैश पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेयंस। Service on board shall be the location of first dash point, first schedule point of departure of that conveyance. Next, the place of supply for a bank to any supply for bank to any person shall be the location of dash if address is available. Location of, अभी इस बैंक में जाते हैं तो हमारी एड्रेस सबके पास सब रजिस्टर्ड होती है, बैंक के पास सारी डिटेल्स होती है। तो यहाँ पे रेसिपिएंट की अगर हमें पता है उसकी एड्रेस, तो ये लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा। द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर बैंक टू एनी पर्सन शैल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इफ एड्रेस इज अवेलेबल। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज शैल बी रजिस्टर्ड पर्सन, द लोकेशन ऑफ डैश। जो रजिस्ट्रेशन होती है, इंश्योरेंस हम लोग लेते हैं तो सारे डिटेल्स, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ सब देना पड़ता है, प्रीमियम हम लोग पे करते हैं। तो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है यानी सारी एड्रेसेस हमारे पास है इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई।